Assalamu alaikum. Pakistan Studies, Class 10th, Lesson number 7, Part C, from Chapter number 8, Economic Development. Today, our main topics are first one is minerals, second, agriculture. Questions which are we cover in the topic number 2. Question number 5, 6, and 7. Question number 5 is what are the important minerals of Pakistan and where are they mined? Question number 6 is explain the importance of agriculture in Pakistan's economy. Question number 7 is what are the measures for maximization of yields? Our first topic is minerals. What is a mineral? Do you know? A solid chemical compound that occurs naturally in pure form. Minerals are most commonly associated with rocks due to the presence of minerals within rocks. Minerals in Pakistan. Pakistan has deposits of several minerals including coal, copper, gold, chromites, mineral salt, bauxite, and several other minerals. There are also a variety of precious and semi-precious minerals that are also mined. अगर अल्लाह ताला जो है उन्होंने पाकिस्तान को बेशुमार जो मिनरल रिसोर्सेज हैं उनसे नवाजा है फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है मिनरल्स रिसोर्सेज जो है वो बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि मिनरल्स से जो मिनरल्स जो हैं उनको हम एज अ रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ करते हैं जिसके अंदर फॉर एग्जांपल आयरन और जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर। तो इस तरह जितने भी मिनरल्स हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं वो एज अ रॉ मटेरियल जो है इंडस्ट्रीज के अंदर यूज हो रहे हैं। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेशुमार जो मिनरल्स हैं उनसे नवाजा है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान के अंदर लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स है, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी का इशू है, जिसकी वजह से इन मिनरल्स को उस तरह से फाइंड आउट नहीं किया जा सका या किया जा रहा जिस तरह से करने की ज़रूरत है। अगर उनको उस तरह से फाइंड आउट कर लिया जाए जिस तरह से करने की ज़रूरत है तो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता है। Mineral Development Corporation. The Pakistan Mineral Development Corporation is the responsible authority for the support and development of mining industry. PMDC is an autonomous corporation under the administrative control of Ministry of Petroleum and Natural Resources of Government Pakistan. It was established in 1974 to help mineral development activities in the country. It is involved in the exploration and evaluation of economic mineral deposits, preparation of techno-economic feasibility reports, mining and marketing. PMDC is operating 4 coal mines, 4 salt mines, quarries and silica sand quarry. PMDC shares 70% of the coal and 58% of the total salt production in the country. Our next topic is Ministry of Petroleum and Natural Resources. Minerals development in the country is the responsibility of Ministry of Petroleum and Natural Resources. The ministry is also running 5 agencies which are developing and exploring the minerals at the federal level. These are as first one is Geological Survey of Pakistan, second Oil and Gas Development Corporation, third one is Pakistan Minerals Development Corporation, fourth one is Gemstone Corporation of Pakistan, and fifth one is Resources Development Corporation. Our next topic is important minerals in Pakistan. Minerals are divided into two groups, metallic and non-metallic. पाकिस्तान के अंदर मेटालिक मिनरल्स भी मौजूद हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स भी मौजूद हैं, बट नॉन मेटालिक मिनरल्स जो हैं वो ज़्यादा मिकदार में मौजूद हैं। Some important minerals are given below. First one is petroleum. Petroleum is very important और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। The important product of petroleum include gasoline, kerosene oil, diesel, mobile oil, wax, charcoal, etc. There are factories in Pakistan to refine oil.
पाकिस्तान के अंदर ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है उसको भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसके अलावा रिफाइनरीज भी लगाई गई हैं। पोटोहार प्लेट्यू जो है पाकिस्तान के अंदर, उस वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी पुराने दौर से चली आ रही है। द ऑयल वेल्स ऑफ दिस एरियाज आर द ओल्डेस्ट रीजन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन। उसके अलावा जो ऑयल वेल्स जो हैं वो बालकासर, कोर, डालिया, जोया मीर, मनावल, कोट सारंगल, मियाल, आजली, काजिया, और इसके अलावा इन लोअर सिंध द इम्पोर्टेंट ऑयल प्रोड्यूसिंग एरियाज आर किनात, टंडोअल्ला, यार एंड जमजमा। These reserves fulfill the country's petroleum needs. Next one is natural gas. Natural gas was discovered in Pakistan in 1952 at Sui. और जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के बिगेस्ट रिजर्व्स माने जाते हैं। उनमें शामिल किया जाता है इनको। जो सुई के मकाम से हमें गैस हासिल हुई है उस रिजर्व को वर्ल्ड बिगेस्ट गैस रिजर्व्स जो उनके अंदर शामिल करते हैं। उसके अलावा नेचुरल गैस इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। दिस गैस इज यूज्ड डोमेस्टिकली एंड आल्सो इन द इंडस्ट्रीज। इसके अलावा पाइपलाइंस जो हैं वो बिछाकर पूरी जो मुल्क है उसकी जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ तक जो है वो गैस को पहुँचाया गया है। पंजाब के अंदर जो नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं वो डॉटक, पीर को, डलिया एंड मियाल से मिले हैं। उसके अलावा उच्च जन जो है वहाँ बलूचिस्तान के अंदर से गैस के जो रिजर्व्स हैं वो मिले हैं। उसके अलावा खैरपुर, मिर्जानी, सरी, होंडी, सारंग जो है वो सिंध के एरियाज हैं जहाँ से नेचुरल गैस जो है वो मिली है। नेक्स्ट वन इज कॉपर। कॉपर जो है पुराने ज़माने में कॉइन्स बनाने के लिए काम आती थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो हैं उनके अंदर यूज़ होती है, जैसे कि वायर्स बनाने के अंदर कॉपर जो है वो अहम रोल अदा करती है। अब पाकिस्तान के अंदर जो रिजर्व्स मौजूद है कॉपर की वो बलूचिस्तान के अंदर चागी और सेंदर, कलास, दोब वगैरह के अंदर मौजूद है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी रिजर्व्स मौजूद हैं, जैसे चित्राल और हज़ारा के अंदर हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट मिनरल आयरन और द आयरन रिजर्व्स ऑफ पाकिस्तान आर अप्रोक्सीमेटली 430 मिलियन टन्स। आयरन आर स्टार्टेड प्रोडक्शन 1957। आयरन रिजर्व्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ प्लेसेस से जो मिले हैं, जिनमें सबसे अहम जो वो कोलाबाग है, देन डोल निसार और लंगरियाल और चिलगाजी जो हैं, इन एरिया से जो है आयरन और जो है वो मिला है। नेक्स्ट वन इज कोल। कोल इज इम्पोर्टेंट एंड ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। और पाकिस्तान के अंदर कोल जो है वो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बनाने में, उसके अलावा ब्रिक्स जो हैं उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए जो है कोल को यूज़ किया जाता है। कोल जो है वो माइन किया जाता है मेनली सॉल्ट माउंटेन्स जो है पंजाब के अंदर वहाँ से। उसके अलावा सिंध के अंदर से जो है कोल को माइन किया जाता है थर से, जमपीर, सारन और लाखड़ा से। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कोल रिजर्व्स को अगर देखा जाए या तलाश किया जाए तो वो हंगू से मिले हैं। बलूचिस्तान के अंदर जो माइनिंग की जाती है कोल की वो कोशट, शरक, दिलगड़ी, आप, मच, बोलान एंड हारनी जो है, हरनाई जो है वहाँ से जो है कोल जो है उसके ज़खायर जो है वो मिले हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट मिनरल है रॉक सॉल्ट। Allah Almighty has blessed Pakistan with more than 100 million tons of reserves of rock salt. These are used for eating and in the chemical industries. पाकिस्तान के अंदर रॉक सॉल्ट जो है उसके बहुत बड़े रिजर्व्स जो हैं वो मौजूद हैं, और इसका सबसे बड़ा जो सोर्स है वो खेवरा माइन है। और वास्ट रिजर्व्स जो हैं वो उसके अलावा जो वास्ट रिजर्व्स हैं वो काला बाग है, वारशा है, जहाँ से हमारा जो रॉक सॉल्ट है वो हमें मिला है। इसके अलावा जो हम रॉक सॉल्ट है लसबेला से और मकरान कोस्ट जो है बलूचिस्तान के अंदर और मानीपुर जो है कराची के अंदर वहाँ से हासिल करते हैं। Next one is chromite. Chromite is a metal which is used for steel manufacturing. और इसके 25 लार्ज रिजर्व्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं।
क्रोमाइट जो है उसे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट भी किया जाता है, और स्टील मिल जो है कराची के अंदर, उसके अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है। उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम बाग, चागी और खारान जो है वहाँ से इसके रिजर्व्स जो है हमें डिस्कवर्ड हुए। उसके अलावा मालाकैंड और मोहम्मद एजेंसी जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है, वहाँ से इसके रिजर्व्स जो है हमें डिस्कवर्ड हुए। नेक्स्ट वन इज जिप्सम. Large reserves of gypsum are found in Pakistan. These are approximately in excess of 350 million tons. जिप्सम जो है उसे भी एज अ रॉ मटेरियल जो है फैक्ट्रीज के अंदर, स्पेशली सीमेंट फैक्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। उसके अलावा फॉस्फेट, फर्टिलाइजर, पेपर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सल्फ्यूरिक एसिड, पॉलिश, रबर्स इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा इसके जो रिजर्व्स हैं वो हमें खेवड़ा से, डंडोट से, दौद खेल से, कैदाबाद से, रोड़ी, कोहाट, डेरा गाजी खान और सिबी वगैरह से हमें इसके रिजर्व्स जो हैं वो मिले हैं। Next one is limestone. Limestone is a useful mineral. It is used for glass manufacturing, soap making, paper, cement, paint manufacturing, making of bleaching powder, whitewashing of building. इसके अलावा सोडा वगैरह बनाने के लिए भी इंडस्ट्रीज के अंदर इसको यूज किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर लाइमस्टोन जो है वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन्स जो है वहाँ से हासिल हुए हैं, जिनके अंदर आपका रौड़ी, हैदराबाद, सिबी, डेरा गाजी खान, कोहाट, नौशेरा और खिजदार जो है वो आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मार्बल. मार्बल इज यूज फॉर फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ बिल्डिंग्स. देयर आर डिफरेंट टाइप्स एंड कलर्स ऑफ मार्बल इन पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अंदर मार्बल के जो रिजर्व्स हैं वो मर्दान, सवात, नौशेरा, हजारा, चागी, गिलगित एंड अटक के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट वन इज सल्फर. Sulfur is an important mineral. The reserves of sulfur in Pakistan are limited. Reserves is approximately 0.8 million tons. यानी पाकिस्तान के अंदर सल्फर के जो रिजर्व्स हैं वो बहुत कम है। सल्फर रिजर्व्स इज यूज इन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, सल्फ्यूरिक एसिड, केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर बेसिकली जो है इसको यूज किया जाता है। उसके अलावा फर्टिलाइजर, पेंट्स, कलर्स वगैरह बनाने में भी सल्फर जो है उसको यूज किया जाता है। सल्फर के जो रिजर्व्स हैं वो बलोचिस्तान, सुल्तान माउंटेन्स जो है वहाँ से हासिल हुए। उसके अलावा जो कलात हैं वहाँ से, और केपीके के कुछ एरियाज जो हैं जैसे चित्राल वगैरह है और पेशावर है वहाँ से, और सिंध के अंदर हैदराबाद और कराची के अंदर सल्फर के जो रिजर्व्स हैं वो मौजूद हैं। Our next point is agriculture. Agriculture is considered the backbone of Pakistan's economy, which relies heavily on its major crops. Pakistan's principal natural resources are arable land and water. Agriculture accounts for about 23% of Pakistan's GDP and employs about 42.3% of labor force. In Pakistan, the most agricultural province is Punjab, where wheat and cotton are the most grown. Our next topic is the role of agriculture in Pakistan's economy. The role of agriculture in Pakistan economy is explained below. First one is source of food. Agricultural production is very encouraging. Man's basic need is food, which includes wheat, cotton, rice, corn, sugarcane, millet, pulses, vegetables and fruit, etc. एग्रीकल्चर जो है पाकिस्तान की जो जितनी भी फूड से रिलेटेड नीड्स हैं उनको पूरा करता है। उसके साथ साथ सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की भी जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करता है। पाकिस्तान के अंदर विंटर और समर दो तरह की क्रॉप्स जो हैं वो सीजनल क्रॉप्स भी मौजूद हैं। नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ नेशनल इनकम. Agriculture sector has played a major role in national income of the country since Pakistan was created. पाकिस्तान जब से वजूद में आया, एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो इस्टेब्लिश हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और डेवलप्ड हो रहा है। उसके साथ साथ जो नेशनल इनकम जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट वन इज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज. इसके साथ साथ जो फॉरेन इंडस्ट्रीज हैं पाकिस्तान के अंदर वो डिपेंड करती हैं, उनकी जितनी भी प्रोडक्शन है
वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं मोस्टली, जैसे कि फ्लोर मिल्स, शुगर मिल्स, राइस मिल्स, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, घी मिल्स, soap industries, bread, juices factories and other food products etc. जितनी भी इंडस्ट्रीज जो हैं फूड से रिलेटेड, वो सारी जो हैं वो डिपेंड करती हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। नेक्स्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। इसके अलावा a large portion of Pakistani population is directly or indirectly dependent on the agricultural sector. Million of people are linked to buying or selling in grain, fruits, vegetable markets. अब पाकिस्तानी जो आवाम है वो किसी न किसी तरह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उससे लिंक आउट है, चाहे फिर वो जो है वो मार्केट से लिंक आउट है, या किसी इंडस्ट्री फूड से रिलेटेड कोई इंडस्ट्री उससे लिंक आउट है, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए होती है उससे लिंक्ड है। तो यानी हर तरह से जो पाकिस्तानी अवाम है उसका ज़्यादातर जो कह लें कि जॉब्स और जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। Our next point is source of foreign exchange. Agriculture sector production leads to agriculture exports. पाकिस्तान जो है लार्ज अमाउंट जो है फॉरेन एक्सचेंज जो है वो हासिल करता है एक्सपोर्ट करके अपनी प्रोडक्शन को, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है लाइक राइस, कॉटन वगैरह जो है उसको सेल आउट करके जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़र मुबादला जो है पाकिस्तान कमाता है। नेक्स्ट वन इज सोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके साथ साथ ऑलमोस्ट 24% ऑफ कलेक्टिव नेशनल प्रोडक्शन ऑफ पाकिस्तान इज फ्रॉम द एग्रीकल्चर सेक्टर। नॉट ओनली पाकिस्तानीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट बट आल्सो इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड डेवलपमेंट जो है वो भी हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। और एग्रीकल्चर जो है लीड रोल जो है हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है या हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसके अंदर सर अंजाम दे रहा है। Our next topic is problems and measures for the maximization of yield. Pakistan is the world famous for its agriculture production. The resources of agricultural land in Pakistan differ. कुछ एरियाज जो हैं वो फर्टाइल हैं, वहाँ की प्लेन्स अच्छी हैं, और उसके साथ साथ क्लाइमेट कंडीशन भी अच्छी है, एक्सीलेंट वाटर रिसोर्सेज भी मौजूद है। जैसे अगर हम पंजाब और सिंध के एरिया की बात करें तो वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज अच्छे हैं, उसके अलावा प्लेन एरिया है, बट उसके बरक्स अगर हम केपीके और बलूचिस्तान के बारे में बात करें तो वहाँ का ना तो क्लाइमेट अच्छा है, ना वहाँ का जो लैंड है वो हमारी एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है। सम रीजंस फॉर दिस आर एज अंडर। कुछ ऐसी रीजंस जो हैं वो मदरजा झेल हैं जो कि हमारी जो यील्ड जो है, हमारी जो एग्रीकल्चर जो है उसको कमज़ोर बनाती हैं या हमारी एग्रीकल्चर के लिए प्रॉब्लम्स पैदा करती हैं। लाइक फर्स्ट वन इज रीजन फॉर लो पर एकड़ एवरेज यील्ड। Pakistan has not been successful in achieving agriculture self-sufficiency due to backwardness. These are the factors by which per acre average is very low. पर एकड़ जो एवरेज है यील्ड की वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम अपनी ज़रूरियात जो हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड ज़रूरियात जो है उनको भी पूरा नहीं कर पा रहे। सेकंड वन है ओल्ड एंड ट्रेडिशनल मेथड्स। इन डेवलप्ड कंट्रीज फार्मिंग इज कैरिड आउट थ्रू मॉडर्न मशीनरी, बट पाकिस्तान के अंदर अभी तक वही ओल्ड और ट्रेडिशनल मेथड्स जो हैं उनको अपनाया गया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पर एकड़ एवरेज जो है यील्ड की वो इंक्रीज नहीं हो पा रही। नेक्स्ट वन इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसके साथ साथ पाकिस्तान को शॉर्टेज ऑफ वाटर जो है उसका भी सामना है। पाकिस्तान के अंदर वास्ट सिस्टम है इरिगेशन का, लेकिन उसके अलावा जो एरियाज ऐसे हैं जहाँ कैनाल सिस्टम जो है उसको उसके थ्रू पानी प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उसके अलावा है नेचुरल डिजास्टर्स है। पाकिस्तान को फ्लड्स और अर्थक्वेक्स जैसे जो डिजास्टर्स है उनका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से मोस्टली फसलें जो है वो तबाह हो जाती हैं। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ इम्प्रूव्ड सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। सीड्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं उससे भी जो ग्रोथ है क्रॉप्स की वो अच्छी होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चूँकि नॉलेज इतनी नहीं है और दूसरे रिसोर्सेज नहीं मौजूद और ना ही इतनी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन मौजूद है,
जिसकी वजह से किसानों को नहीं मालूम होता कि उन्हें किस तरह का बीज यूज़ करना है और किस तरह की फर्टिलाइजर्स जो है अपनी फसलों के अंदर यूज़ करने हैं, जिसकी वजह से जो हमारी यील्ड की ग्रोथ है पर एकड़ के हिसाब से वो बहुत कम होती है। Next one is different problems. In Pakistan, agriculture sector has to face many other problems. इसके अंदर सीड क्वालिटी भी हो सकती है, फर्टिलाइजर्स हो सकते हैं, उसके अलावा इलिटरेसी रेट है फार्मर के अंदर, एजुकेशन नहीं है, उसके अलावा लैक ऑफ कल्टिवेटेड एरियाज है, वाटर इश्यूज है, एग्रीकल्चर लोन्स जो हैं वो नहीं मिलते, डिजीजेस जो हैं क्रॉप्स की उनके बारे में एजुकेशन नहीं है लोगों को, जिसकी वजह से उसके अलावा वाटर लॉगिंग जैसे इश्यूज हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा जो है हमारा जो पर एकड़ के हिसाब से जो एवरेज यील्ड है वो बहुत कम होती है। और ऐसे मिसाइल की वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो है वो इतना इम्प्रूव नहीं हो पा रहा, और इसीलिए हम अपनी सेल्फ सफिशेंसी जो है वो अपनी अपनी ज़रूरत जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो हमारी ज़रूरियात हैं, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो हमारी पाकिस्तान की अपनी ज़रूरियात जो है उनको पूरा नहीं कर पा रहा। Our next topic is steps to increase agriculture production. Some important steps for boosting of agriculture yields are given below. First one is agricultural education. The government is also providing agriculture machinery to increase per acre production. Plus उसके साथ साथ जो किसान हैं उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए, उन्हें बताया जाए कि कैसे सीड यूज़ करना है, कैसे फर्टिलाइजर जो हैं हमें अपनी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए यूज़ करनी है। Next one is waterlogging and salinity. The government is taking steps to control waterlogging and salinity. For this purpose, about 60 reclamation schemes have been completed. The 18 million acres of land have been made fertile. और इस तरह से 18 मिलियन एकड़ जो है हमने लैंड जो है उसको फर्टाइल बनाने में हम कामयाब हो चुकी हैं। It increased not only the cultivatable lands but increased the agriculture production. और इससे सिर्फ हमारी जो एग्रीकल्चर है लैंड जो है वो बड़ी नहीं है, बल्कि उसके साथ हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो भी इम्प्रूव हुई है। नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स. The use of fertilizers also contributes to growth of per acre yield and overall increase the agriculture production. इसलिए गवर्नमेंट का काम है कि फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करें ताकि वो अच्छे से अच्छे फर्टिलाइजर जो है वो यूज कर सकें। नेक्स्ट वन इज इरिगेशन सिस्टम. पाकिस्तान हैज वन ऑफ द बेस्ट इरिगेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड. इट हैज 180-year old. इतने साल पुराना इरिगेशन सिस्टम है और बेस्ट सिस्टम है, लेकिन उसके बावजूद चूंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से एरियाज के अंदर रेनफॉल जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, जिसकी वजह से वहाँ की लैंड जो है उसको इरिगेट नहीं किया जा सकता, और वहाँ पे इरिगेट करने के लिए डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड की जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि वहाँ का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट वन इज मेजर्स फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है उसको इम्प्रूव किया जाए, रोड्स जो है उनको इम्प्रूव किया जाए, ताकि मार्केट तक रसाई जो है वो आसान हो जाए रॉ मटेरियल और जो इंडस्ट्रीज के लिए है, और प्रोडक्ट्स जो मार्केट तक पहुंचाई जाती हैं उनके लिए रोड्स का होना बहुत ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि किसान जो है आसानी के साथ अपनी प्रोडक्शन जो है जो प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंडस्ट्रीज तक पहुंचा सकें, ताकि हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो बेहतर हो सके, हमारी एग्रीकल्चर ट्रेड जो है वो बेहतर हो सके। नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फॉर्म रिलेशंस. यानी लैंड ओनर्स जो हैं और फार्मर्स जो हैं उनके दरमियान अच्छे रिलेशनशिप कायम करना भी बहुत ज़रूरी है। यानी ओनर्स जो हैं और टेनेंट्स जो फार्मर्स हैं उनके दरमियान जब तक अच्छे रिलेशन नहीं होंगे वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। दोनों पार्टीज जो हैं वो लीगली जो है एक दूसरे को, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी तब तक जो एग्रीकल्चर है उसको प्रमोट करना या एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको डेवलप करना या उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना बहुत मुश्किल है। Second one is measures to utilize barren land. The government of Pakistan has taken many steps to utilize barren and uncultivated land. For this purpose, many acres of government lands are distributed among the tenants. और इस मकसद के लिए बहुत सी जो गवर्नमेंटल लैंड जो है वो फार्मर्स को दी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रोडक्शन की जा सके।
Next one is effective plans. The government of Pakistan is providing the training facilities to farmers regarding effective agriculture planning. उसके साथ साथ ट्रेनिंग फैसिलिटीज फार्मर्स को प्रोवाइड की जाए, उन्हें सिखाया जाए कि किस तरह से ज़्यादा प्रोडक्शन जो है पर एकड़ के हिसाब से जो है की जा सकती है प्रॉपर एग्रीकल्चर प्लानिंग के थ्रू. Next one is agriculture reforms. Many attempts were made to promote agriculture sector by the government of Pakistan. अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स का जायजा लें तो 1959, 1972 और 1977 के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई थी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसको, और बाकायदा प्लान्स जो हैं वो तैयार किए गए थे ताकि पर कैपिटल इनकम जो है एग्रीकल्चर के थ्रू जो हमें हासिल होती है उसको इम्प्रूव किया जा सके, और उसके साथ साथ जो फार्मर है उसकी लाइफ को जो है बेहतर बनाया जा सके. नेक्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक. इसके साथ साथ एक इम्पोर्टेंट स्टेप जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने लिया वो ये था कि एस्टैब्लिशमेंट किए गए एग्रीकल्चर बैंक जो हैं ताकि शॉर्ट टर्म के ऊपर और लॉन्ग टर्म्स के ऊपर जो है लोन्स जो है फार्मर्स को दिए जा सकें ताकि वो आसानी के साथ जो अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है उसको इम्प्रूव कर सकें. तो बेसिकली ये सब वो स्टेप्स हैं जो लिए गए और आगे भी लिए जा सकती हैं या लिए जाती हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए. Home task. Dear students, today your home task is learn the question number 5, 6 and 7. I hope you understood all the topics and questions very well. Learn them on time. Thank you.